Good morning, everyone. So let's start English Literature, BA Part 3rd, and continue our Victorian Age. So हम सिलेबस को डिस्कस कर चुके थे विक्टोरियन एज और विक्टोरियन एज का हम इंट्रोडक्शन कल कंप्लीट कर चुके थे यहाँ तक। अब आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एज ऑफ प्रोज में, moral purpose and idealism. So let's start with age of prose. So age of prose में first point कहता है, though the age produced many poets and to who deserve to rank among the greatest, nevertheless this is emphatically an eye of prose. So basically कहता है ये वो era था, ये वो point of time था जिसमें सबसे greatest, ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट पोइट्स जो हैं द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट दोज पोइट्स. सो इस टाइम पे दे स्टार्टेड कमिंग अप. फाइन. सो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छे डिजर्विंग पोइट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आए थे. नेक्स्ट कहता है हमें, सिंस द नंबर ऑफ रीडर्स हैज़ इंक्रीज्ड 1,000-fold with the spread of popular education, it is the age of newspaper, the magazine and the modern novel. अभी हमें कहता है कि basically this was a period of time, the number of, because when the poets, when the novelists, when these great works start coming, तो basically जो readers थे वो भी increase हो गए थे, and they increased not in just few numbers, they increased 1,000-fold. People started reading them. ठीक है, पॉपुलर एजुकेशन का स्प्रेड हो गया था, एंड नाउ दिस वाज द एज ऑफ द न्यूज़पेपर, द मैगजीन एंड द मॉडर्न नॉवल. फाइन. अब ये कहता है द फर्स्ट टू बीइंग द स्टोरी ऑफ द डेली लाइफ, बिकॉज वी ऑल नो न्यूज़पेपर्स, इफ यू टॉक अबाउट बेसिकली newspapers, if we talk about newspapers and magazines, these are related to daily life, and if we talk about the novel, it is actually related with the pleasantry form of लिटरेरी एंटरटेनमेंट. ठीक है, तो ये दोनों न्यूज़पेपर एंड मैगजीन डेली लाइफ से रिलेटेड थे, और नॉवल जो है वो लिटरेरी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड थे. इफ़ यू वांट टू गेट एंटरटेन्ड, इफ़ यू वांट टू हैव सम फन, सो यू विल रीड अ नॉवल. फाइन. नेक्स्ट कहता है, द नॉवल इन दिस एज फिल्स अ प्लेस which the drama held in the days of Elizabeth. So basically जो टाइम था, एलिजाबेथियन टाइम था, उसमें जो कुछ भी होता था, नाउ दिस वाज द टाइम जब नॉवेल्स में उसके बारे में लिखा जा रहा था. फाइन. एंड नेवर बिफोर इन any age or language has the novel appeared in such numbers and in such perfection. So this was the time जब नॉवेल्स इतने ज़्यादा नंबर्स में थी, जब लोग इतना पढ़ रहे थे, जब नॉवेल्स इतनी अच्छी लेवल की थी. So basically it was perfection and there were great numbers also. Fine. So ये basically point हो गया हमारा टोटल एज ऑफ प्रोज का. फाइन. नेक्स्ट हम बात करेंगे moral purpose. Moral purpose says that the second marked characteristic of the age, no, that was the first characteristic. The second characteristic is that literature, both in prose and in poetry, दोनों की बात कर रहे हैं, prose and poetry की, seems to depart. What do we mean by basically depart? Means leave. So it leave from the purely artistic standard of art for art's sake. So art for art's sake, what does it say? It says that it conveys the idea that the only aim of work of art is the self-expression of the individual artist who creates it. In simple words, बेसिकली जो ये इसका मतलब ये होता है कि जो आर्ट है उसका बेसिक मोटो क्या होता है, एम ये होता है कि वो एक्सप्रेस करता है उस इंडिविजुअल आर्टिस्ट जिसने उसे बनाया है, उसको ही वो एक्सप्रेस करता है. दैट्स द बेसिक थिंग दैट आर्ट डज. ओके. So it says of art for art's sake and to actuated by a definite normal purpose. Actuated means to cause to operate in a particular way. Fine.
नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट even the novel breaks away from Scott's romantic influence and the first studies life as it is and then points out what life may and ought to be. So now there was a breaking, मतलब कुछ diversion हो रहा था. बेसिकली स्कॉट के जो हमारे रोमांटिक इन्फ्लुएंसेस हो रहे थे, अब नॉवेल्स किसके बारे में थे कि बेसिकली हाउ लाइफ इज़, ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली लाइफ कैसी है, एंड देन वी यूज टू टेल दैट हाउ लाइफ मे बी और ऑट टू बी. दैट वाज द बेसिक थिंग. नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट वेदर वी रीड द फन एंड सेंटिमेंट ऑफ डिकेंस. ठीक है, तो डिकेंस कैसा लिखता था, एज वी नो इट वाज फन एंड सेंटिमेंट. या जो अगर हम सोशल मिनिएचर्स की बात करें ऑफ थैकरे, सो सोशल मिनिएचर्स क्या होते हैं, अ थिंग दैट इज स्मॉलर देन द नॉर्मल. तो वो जो छोटी छोटी सी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज टाइप होती थी. और द साइकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ जॉर्ज इलियट. तो बेसिकली अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, वी बेसिकली फाइंड आउट दैट इन ऑलमोस्ट एवरी केस अ डेफिनेट पर्पस to sweep away the error and to reveal the underlying truth of human life. तो basically इन सब ने क्या किया, this sweep away basically means to clean or brush away the errors को हटाया और जो actual truth था human life का उसको इन्होंने reveal किया था. That was the basic motto and that could be seen in their novels and in their works. Okay, fine. अब ये हमारा मॉरल पर्पस था. इसका एक छोटा सा पार्ट बचा है एंड हमारा आइडलिज्म जो है वो रिमेनिंग है, उस जिसे हम कल कवर करेंगे. आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, द एज ऑफ प्रोज एंड द पार्शियल पार्ट ऑफ मॉरल पर्पस. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप enjoying. Thank you.